So very good morning, students. Today we are going to revise two chapters from the history. PT1 chapters, New Kings and Kingdoms and Delhi Sultans. First chapter that we are going to revise is New Kings and Kingdoms. The first thing, जब हम New Kings and Kingdoms की बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज हुई थी emergence of new dynasties. New dynasties. What do you mean by term dynasty? Dynasty. We have done this term in class 6 also. What do you mean by dynasty? Yes. Anyone? Yes, Manu. When the member of a same family rule one after another. तो जब हम न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो यहाँ पे चीज है emergence. Emergence of what? Emergence of new dynasty. Emergence of new dynasty. Which dynasties emerged at that time? Rashtrakutas, Chalukyas, Gurj Pratiharas. ये हमने सभी के बारे में पढ़ा था, है ना? We learned about all these things. ठीक है? तो यहाँ पे three new dynasties were emerged. कौन कौन सी? Rashtrakutas, Gurjar Pratiharas and Chalukyas. That we have done. ठीक है? अब इसमें हमने एक चीज भी पढ़ी थी, Samantas. Samantas, those who were the big landlords or the warrior chiefs. When they gained the power, they tried to be independent and they themselves gave high sounding titles. उन्होंने अपने आप के नाम के आगे क्या लगा लिया था? महासमंतास, महासमंतास और महामंडलेश्वर. These titles were given to them when they gained the power. Then we talked about कि हमने यहाँ पे राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा था कि उनका एक रूलर था दंती दुर्गा. दंती दुर्गा के बारे में we studied about दंती दुर्गा. तो उसमें क्या था कि राष्ट्रकूटा chief overthrew the Chalukya overlord and performed a ritual. Which ritual performed by Danti Durga? Hiranyagarbha. Which ritual was performed by him? Hiranyagarbha. So when इस ritual का performance का मतलब क्या था? When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya. Earlier, Danti Durga was not a Kshatriya, but after performing this ritual, which ritual? Hiranyagarbha, he considered himself as Kshatriya. उसका rebirth हुआ है as Kshatriya. क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि उस टाइम पे जब हमने वर्णा सिस्टम था कि जो क्षत्रियास थे वो उसी वर्णा को बिलोंग करेंगे, वो ब्राह्मण क्षत्रियास में नहीं आ सकते, क्षत्रियास ब्राह्मण का पार्ट नहीं बन सकते. बट इन दिस टाइम these people started doing these type of rituals so that they can consider themselves as kshatriyas. Now another examples like Kadamba Maurya Sharnam and the Gurjara Pratihara Harichandra were Brahmins. ये भी Brahmins थे who gave up their traditional profession and took up arms. Brahmins, पहले ये ब्राह्मण्स थे पर इन्होंने लेटर ऑन किस वर्णा को ज्वाइन किया? क्षत्रियास. ठीक है? अब आती है एडमिनिस्ट्रेशन. द नेक्स्ट थिंग, पहले था इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. Administration in the kingdom. First, Samantas gained the power. They declared themselves as independent, but slowly and gradually, new kings were also there. They were also emerged, and they also gave some high-sounding titles to themselves. Maharaja Dhiraj, Tribhuvan Chakravarti, इस तरह के टाइटल्स क्यों देने शुरू किए? कि अपने आप को ज्यादा पावरफुल शो करने के लिए, कि हम लगे हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, है ना? तो आफ्टर गेनिंग द पावर उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया? महाराजा धीराज,
त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह के हाई साउंडिंग टाइटल्स उन्होंने देना शुरू कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन की? विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशंस ऑफ पेजेंट्स, पेजेंट्स की एसोसिएशन के साथ, ट्रेडर्स के साथ, ब्राह्मण्स के साथ, मतलब इन्होंने काफी वेल मेंटेन करके रखा कि हमें सबके साथ मिलके काम करना। एंड व्हाट डू यू थिंक जो मेजर सोर्स होगा इनकम का वो क्या हुआ होगा उस टाइम पे? हमेशा क्या रहता है? विच वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम? टैक्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है। तो उस टाइम पे भी दे हैड टू कलेक्ट द टैक्सेस, ठीक है, दे हैड टू कलेक्ट द टैक्सेस। वेरी गुड बर्लिन। So to run the administration, these kings started collecting the revenue. इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया. So many taxes were imposed at that time. And after collection, where these taxes were used, जो भी रेवेन्यू से वेल्थ कलेक्ट हो रही थी, where that wealth was used for the welfare of the people, है ना? और कहाँ कहाँ पे? The used to finance the king's establishment as well as construction of temples, forts, and they were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the from the plunder. मतलब अगर वो wars भी कर रहे थे, जिन एरियाज पे दूसरे किंग्स पे अटैक भी कर रहे थे, वहां पे भी उनको हराने के बाद उनकी वेल्थ को भी लेकर आ रहे थे, है ना? तो उस वेल्थ को भी वो यूज कर रहे थे. तो दैट वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब वो इतना वॉर लड़ रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे, दैट शुड बी नोटेड डाउन समवेयर. कहीं ना कहीं वो चीजें नोट डाउन होनी थी. एंड दोस थिंग्स वर नोटेड डाउन ऑन प्रशस्तीज. प्रशस्तीज क्या थी? इन प्रेज ऑफ, उनकी किंग्स की प्रेज में लिखी गई. And who wrote those prashastis? Brahmins. Who wrote those prashastis? Brahmins. And in return, what did they get? Land grant. In return, what did they get? Land grant. So the next thing, क्योंकि emergence of new dynasties हो गई, अब जो new kings बने, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की, अपने किंगडम को प्रॉपर रूल भी करना था. They started collecting the taxes. And those taxes were used for the welfare of the people, for fighting wars. अब आता है कि जब वो इतना सारा काम कर रहे थे, तो वो कहाँ पे नोट डाउन हो रहा था? इन प्रशस्ति. And who were writing those prashastis? Brahmin. And in return, what were they got? They got land grants. ठीक है? तो प्रशस्ति. अब नेक्स्ट आ गया है इसमें प्रशस्ति and land grants. ठीक है? अब इसको ट्रू अकाउंट नहीं कह सकते, बिकॉज जब भी आपको कोई रिवॉर्ड का लालच होता है तो आप उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बता देते हो कि पर्टिकुलर किंग कितना ज्यादा ब्रेव, करेजियस था. हो सकता है उसने वॉर्स फाइट की हो सकता है ना? पर किसी चीज को मतलब रिवॉर्ड के लालच में आप उसको और ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हो, सो दैट इन रिटर्न यू कुड गेट द रिवॉर्ड. तो ये प्रशस्ति में जो इंफॉर्मेशन थी, दैट वाज नॉट सो मच ट्रू. Then it was composed and learned by Brahmins who occasionally helped in the administration, and in return, as a reward, what did they get? Land grants. और उन land grants को रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाता था? कॉपर प्लेट्स. किसको कितनी लैंड कहाँ पे मिली है? So where did all that, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, they had to manage all these things. So where did they keep the record? In the on the copper plate. वहां पे उस चीज का रिकॉर्ड को रख रहे थे. और इसी टाइम पे कश्मीर के एक रूलर की भी प्रशस्ति की बात की गई है. इन द 12th century one poem was composed, the ruler of king of Kashmir. That was, किसने कंपोज की थी? कंपोज्ड बाय कल्हना. पर उस पोएम को कंपोज करने के लिए उसने काफी स्टडी की, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट किया, डॉक्यूमेंट्स रीड किए, इंस्क्रिप्शंस रेड की, then he wrote that poem. फिर आ जाती है, अभी हमने पढ़ा कि जो किंग्स हैं they also fought wars, but that war for welfare, for the warfare for the wealth, पैसे के लिए. ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट
warfare for wealth. अब यहाँ पे एक फेमस स्ट्रगल हुआ है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। 3 इसमें डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। Which 3 dynasties were involved here? Yes, Manya. Very good. Gujrat Pratiharas, Palas, and Rashtrakuta. 3 parts. And which area they wanted to control? Kannauj. कौन सी एरिया को कंट्रोल करना था उन्होंने? कन्नौज। तो उस टाइम पे जो स्ट्रगल हुआ बिटवीन दीज 3 डायनेस्टीज, दैट स्ट्रगल वाज नोन एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। अब किसी एरिया को ये तीन पार्टीज लगी हुई हैं, 3 डायनेस्टीज लगी हुई हैं, मे बी ड्यू टू लोकेशन, मे बी ड्यू टू रिसोर्सेस, है ना, कि उनको लगा कि ये बहुत ही यहाँ पे रिसोर्सफुल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ मिल सकती है, दैट्स व्हाई एवरीवन वांटेड टू ग्रैब दिस। तभी ये तीनों डायनेस्टीज जो उस टाइम पे थी, दे वांटेड टू अटैक ऑन द कन्नौज। अब इसके साथ साथ some invaders also attacked at that time. One was Mahmud of Ghazni, other was Muhammad Ghori. Mughals के टाइम पे कौन से invaders थे? Which invaders were there at the time of Mughals? Yes, Akshara. Nadir Shah and Ahmad Shah Abdal. But now we are going to talk about the time when our rulers were there. जब ये चोलास, है ना, गुर्जर प्रतिहारास, जब ये डायनेस्टीज थी, तो उस टाइम पे कौन से हमारे यहाँ पे इन्वेडर्स थे? महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। Who defeated Muhammad Ghori in 1191? Who defeated? Yes, Bhumish? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट बैटल में वो उससे हार गए थे, बट फर्स्ट बैटल में उनको उसने हरा दिया। एंड which temple was attacked by Mahmud of Ghazni? Which temple was attacked by Mahmud of Ghazni? Online students, give the answer. Yes, Mridul. सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। और महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया कि जब भी यहाँ पे अटैक किया, जो वैल्यूएबल वेल्थ थी वो कहाँ पे स्पेंड की? टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल एट गजनी। अब गजनी में अपनी जो कैपिटल बनाई, उसको जो वहां पे उसने बनाने के लिए उसको वो सारी वेल्थ जो भी, क्योंकि इन्वेडर्स का काम क्या होता है? जस्ट अटैक एंड जस्ट प्लंडर द वेल्थ फ्रॉम दैट एरिया, जो भी वहां पे वैल्यूएबल है। और जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे यहाँ पे जो टेम्पल्स थे, दैट वर कंसीडर्ड वेरी मच रिच, बिकॉज एट दैट टाइम द रूलर्स, दोज हु बिल्ड दीज temples or mosques, because they wanted to demonstrate their power and wealth. गोल्ड की इमेजेस हो गई, जेमस्टोन्स लगा दिए, ठीक है, तो ये हमेशा अट्रैक्ट करते थे फॉर द इन्वेडर्स कि वो अटैक करें उस एरिया पे, एंड स्पेशली ऑन द टेम्पल्स। टेम्पल्स पे ज्यादा अटैक हुए उस टाइम। नाउ फ्रॉम उरेयूर टू तंजावर। अब यहाँ पे जो मेन हम बात करते हैं, एक और फेमस डायनेस्टी की बात करते हैं, चोलास, जिसके टाइम पे एग्रीकल्चर वर्क के बारे में, टेम्पल्स के बारे में, द स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड द ब्रोंज कल्चर। चोलास डायनेस्टी कहाँ पे हुई है? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। टेम्पल्स काफी अच्छे बनाए थे, स्प्लेंडेड, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था, उनका स्टाइल बहुत अच्छा था, ठीक है। और भी फेमस यहाँ पे रूलर्स हुए हैं। बाय दिस टाइम विजयालय को कंकर्ड किया गया, फिर उसके बाद राजा राजा वन, चोला डायनेस्टी के राजा राजा वन वाज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, ठीक है। देन टेम्पल्स, द टेम्पल्स द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, द टेम्पल्स दैट वर built by the Chola rulers, that were the center of the settlements. Craft persons settled down there, craft persons settled down over there, temples were endowed। अब उनको लैंड कहाँ से मिलती थी? by the rulers, by the merchants, and why that land was given to them? ताकि वो वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि there were so many people those who helped
उस टाइम पे प्रीस्ट हुआ करते थे, गार्लैंड मेकर्स हुआ करते थे, और भी स्वीपर्स वगैरह। अब टेम्पल को कोई एक पर्सन तो नहीं चला सकता, सो मेनी अदर पीपल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी, उनको खाने के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए थी, तो दैट लैंड वाज यूज्ड फॉर दैट। ठीक है, so the temples were also endowed with the land by the rulers as well as by the others. अब उस लैंड को कैसे यूज करते थे? The produce of that land was spent in maintaining all the specialists. कोई भी है, क्राफ्ट पर्सन है, आर्टिसंस है, कुक्स हैं, स्वीपर्स हैं, डांसर्स हैं, जो भी उन टेम्पल्स को के लिए हेल्प कर रहे थे, उन सबके लिए, फॉर ईच एंड एवरी। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत ही चोला की कौन सी इमेजेस? कॉपर इमेजेस, bronze images. Chola's bronze images are considered amongst the finest in the world. फिर उसी टाइम पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन में भी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चोला डायनेस्टी की बात करते हैं, टॉक अबाउट चोला, तो यहाँ पे एक तो उनका टेम्पल्स के बारे में कॉन्ट्रिब्यूशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और साथ में एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने सेल्यूस गेट्स वगैरह बनाए, और उस टाइम पे कैनल्स वगैरह डग की गई, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, वेल्स डग किए गए। ऑल दीज थिंग्स वर डन रिलेटेड टू द इरिगेशन। फिर उस टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट भी आया साउथ में, सभा। कैसे मेंबर बन रहे थे? वो स्लिप्स डाल के, है ना, जैसे होता है ना कि मतलब वो छोटी छोटी चिट्स डाल दो, और किसी बच्चे को बुलाया करते थे, और वहां से उनके मेंबर्स को चुन लिया करते थे। एंड द लैंड गिवन टू द ब्राह्मण्स दैट वाज नोन एज ब्रह्मदेव। कहाँ पे पढ़ा था लैंड गिवन टू द ब्राह्मण्स? व्हेन दे वर राइटिंग द प्रशस्ति। ठीक है, तो ब्राह्मण्स को भी लैंड रिसीव हुआ करती थी, तो द लैंड रिसीव्ड बाय ब्राह्मण्स एज ग्रांट दैट वर नोन एज ब्रह्मदेव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी सभा वगैरह होती थी, कमेटीज होती थी, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि प्रॉपर वहां पे उनके नाम पाम लीफ पे लिख के कोर्ट में डाल देते थे, किसी बच्चे को बुला के एक एक स्लिप उठा लेते थे, जिसका नाम आता था वो उस कमेटी का मेंबर बन जाता। सो व्हाट वर द क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ सभा? क्या क्या क्वालिफिकेशन थी? दैट those who wish to become the members of sabha should be owners of land. ठीक है, should have their own homes, और उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 and 70 years. They should have knowledge of Vedas. They should be well versed in administrative matters. ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए। Then they, this is the one chapter. अगला है दिल्ली सुल्तान। कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया है? व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली, व्हिच डायनेस्टीज रूल? स्टार्टिंग कहां से हुई थी? they made the Delhi as first capital ना, तुम्हारा राजपूत। पर आफ्टर दैट, फिर उसके बाद जब हम दिल्ली सुल्तान की बात करते हैं, फर्स्ट वाज द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव्स के बाद, स्लेव डायनेस्टी के बाद खलजी डायनेस्टी, देन Tughlaq dynasty, then Sayyid dynasty, and then Lodi dynasty. Very good. Now I have written the names of dynasties on the board. So which one is the first one? Slave dynasty. This one is the first one. उसके बाद Khalji dynasty, then Tughlaq dynasty, then Sayyid dynasty, Tughlaq dynasty, Tughlaq then Sayyid, पक्का? Sayyid dynasty, then Lodi dynasty, then Lodi dynasty. Who started the slave dynasty? Who started the slave dynasty? Yes, Anurit? Qutbuddin Aibak, because he himself was a slave. Okay. Now, who was the first women ruler? Who was the first? Yes, Niyamat. Razia Sultan. And she belonged to which dynasty? Yes. Slave dynasty.
Did she accept as ruler by the nobles, by other people? Yes, Harman. No, they were not want to accept the orders from a women ruler. But can we say the same thing happen in present day time also? No. Now we are readily accepting them. वो हम उसकी बात नहीं करते. We are talking about our own country. I am talking about India. So when we are talking about this, exceptional cases are there, but that is only possible when there is dictatorship, है ना? तो उस चीज पे, but when we are talking about democracy, especially the country like India, now we are having chief minister, ministers, prime minister, president. Now we are taking the orders from the women. Now we are readily accepting them, but now at that time, women were not accepted as a ruler. Now, इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी जो दिल्ली सुल्तान थे. They led two campaigns, internal frontiers and external. Again, two terms, garrison town and hinterland. Garrison town and hinterland. अब internal frontier पे क्या किया उन्होंने? In the internal frontier, they consolidate. Consolidate मतलब they combine the area of hinterland of garrison town. तो उन्होंने जो hinterland थी, जो garrison towns क्या थे, जहाँ पे soldiers को रखा था, आसपास की लैंड को जब उन्होंने एक्वायर किया, जो भी उनके बिल्कुल आसपास की लैंड थी, that was known as internal frontier. For that they cleared the forest, they made new forts, new towns. ठीक है, for that. पर एक्सटर्नल में क्या किया? अपने एरिया से बाहर, एरिया बियॉन्ड द गैरिसन टाउन्स, अपने एरिया से बाहर जाके उन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशंस की. टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? सदर्न, साउथ इंडिया की तरफ उन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन की कि हमने नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिया, उस एरिया को कंसोलिडेट कर लिया है, अब हम उस एरिया से बाहर जाएंगे. कहां पे? इन द नॉर्थ, इन द साउथ इंडिया. वहां पे जब उन्होंने अटैक किया तो वहां से क्या कैप्चर किए? एलिफेंट्स, हॉर्सेस और स्लेव्स एंड प्रीशियस मेटल्स. These were captured by them. अब उसके बाद ये सारा कुछ जो स्टार्ट हुआ था, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि खलजी डायनेस्टी के टाइम पे स्टार्ट हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये अपने फारदेस्ट एक्सटेंट पे पहुंच गया. नेक्स्ट जो है द मेन थिंग, द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक. Whose administrative measures were the failure? Whose administrative measures were the failure? Yes, Nidul. Muhammad bin Tughlaq. Very good. Who introduced the market control policy? Who introduced the market control policy? Yes, Manya. Alauddin Khalji. अच्छा, जब हमने मुगल्स की बात की थी, at that time the one who hold the rank, that was known as मनसबदार. वो भी एक तरह से मिलिट्री कमांडर था. पर यहाँ पे भी एक सेम टर्म आती है दिल्ली सुल्तान में फॉर द मिलिट्री सुल्तान, मिलिट्री कमांडर्स. विच टर्म इज दैट? इकतदार. वो इकतदार क्या है कि दोज हु होल्ड द लैंड, है ना. तो लैंड के लिए क्या वर्ड यूज किया गया था? इकत. एंड द वन हु इज होल्डिंग दैट लैंड, दैट इज नोन एज इकतदार एंड मुफ्तीज. मुफ्तीज वर द मिलिट्री कमांडर्स. इनका काम क्या होता था? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. पर जो मुफ्तीज थे, they resided in that area, in that land, and they collected the revenue. The revenue collected by the Delhi Sultans on the crop production. Particular name is given. Tax on cultivation that was collected by Delhi Sultans. Yes, Ankit. Haraj. तो जिस टाइम पे ये दिल्ली सुल्तान थे, they were also faced attack from the किससे? From the चंगेज खान. At that time जो खलजी जो रूलर्स थे, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया था? अलाउद्दीन खलजी ने कौन सा मेजर अडॉप्ट किया था? डिफेंसिव मेजर. उसने भी, दोनों ने स्टैंडिंग आर्मीज रखी थी, पर मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके रखी थी? टू अटैक.
अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों रखी थी? टू डिफेंड. Which new garrison town was constructed by Alauddin Khilji? Yes, beta. Siri. Did Muhammad bin Tughlaq construct any new garrison town? No. उसने क्या किया? जो पुरानी सिटीज थी उनको खाली किया और रेजिडेंट्स को कहाँ भेज दिया? Where did he send the residents? दौलताबाद. उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी? दौलताबाद. ठीक है. And which currency was introduced by Muhammad Tughlaq? That was also a failure. Token currency, because that token currency was made up of very cheap metal. तो उस टाइम पे फ्रोज करेंसी जो फॉल्स करेंसी थी वो भी मार्केट में आ गई. लोगों ने क्या किया? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स अपने पास रख लिए और उस टोकन करेंसी को यूज करना शुरू कर दिया. और जो किंग था उसकी ट्रेजरी में सारी क्या आ गई? टोकन करेंसी. उसके पास सिल्वर और गोल्ड रहा ही नहीं. दैट वाज आल्सो द फेलियर. ओके, सो बाय दीज वी कैन से. अब यहाँ पे आपके पूरा प्रॉपर टेबल बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ बोथ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी दैट वर अ फेलियर, व्हेयरएज अलाउद्दीन खिलजी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी दैट वर क्वाइट सक्सेसफुल. ठीक है. और अलाउद्दीन खिलजी ने सिंपल जो टैक्स लगाया जो 50% ऑफ द प्रोड्यूस दैट वाज देयर. बट मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस्ड द एडिशनल टैक्स. जो टैक्स लगा हुआ है वो तो दोगे ही, पर यू हैव टू पे मोर टैक्स ऑन दैट. बट एट दैट टाइम व्हाट वाज द कंडीशन? व्हाट वाज देयर? Drought was there and peasants were not able to pay the tax. So all these measures that were taken by Muhammad bin Tughlaq that went against. Okay, any doubt beta?